I discussed the concept of time valuation of money. Now, I will discuss how that concept will be applied for bond valuation. ये bond क्या होता है? Bonds are issued by government or public sector undertakings or units which are long-term fixed income debt instrument. Debentures are also long-term fixed income securities, but the difference is debentures are issued basically by private sector joint stock companies. Now, what is principal? Principal refers to the amount borrowed in exchange for the bond of debenture. While the coupon rate, this is coupon rate, represents the interest rate paid on the borrowed amount. Now, how you will value the bond? This is the formula by which you will compute the value of the bond, and this is the formula for intrinsic value method. Here VD, this is the value of the bond or debenture. Both are same, only difference I have already explained. Bond are issued by government and debentures are issued by private sector companies. I is the annual interest payment. This is KD, capitalization rate or discount rate. M is the maturity value in number of years to maturity. So this is the formula by which you can compute the value of a bond. यहाँ पर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया गया. हाउ? एक्चुअली I1 जो है, I1 मीन्स इंटरेस्ट रिसिप्ट आफ्टर 1 ईयर. तो यू आर वैल्यूइंग द बॉन्ड टुडे. तो ये जो 1 साल का बाद में यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट, व्हाट इज द वैल्यू टुडे? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यूचर वैल्यू को कैसे प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो इसको जो है, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD, KD मीन्स डिस्काउंट रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, आस्किंग रेट, मार्केट रेट, यू कैन से लाइक दिस. तो ये प्रेजेंट वैल्यू में आ गया. तो 1 साल का बाद में यू विल रिसीव द इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट टुडे विल बी दिस इफ यू कंप्यूट दिस. इन दिस वे जो इंटरेस्ट यू विल रिसीव आफ्टर सेकेंड ईयर, उसका आज का दिन में वैल्यू क्या है? तो यू विल कंप्यूट बाय दिस फॉर्मूला. I2 divided by 1 plus KD to the power 2. Here is 2, that's why 2. In this way, after 3 years, if you receive the interest I3, तो कैसे निकालोगे आज का दिन में उसका वैल्यू क्या है? I3 divided by 1 plus KD to the power 3. अगर if you have any doubt, तो just previous video को you will check. वहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी elaborately डिस्कस किया हुआ है. That's why no issues. You can check it from that video. And at the टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी पीरियड आता है, से इन पीरियड इन ईयर्स, इट मे बी 3 years, 4 years, 5 years. तो ऑन दैट ईयर यू विल रिसीव द इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, दैट इज IN फॉर इन पीरियड, एंड द मैच्योरिटी वैल्यू वट एवर इट मे बी, M is the maturity value. After maturity of the amount, what amount will receive? That means total received amount will be this IN plus M. और इसी को फिर आज का दिन में वैल्यू में लाना है. I will convert this amount to present value. तो you will divide this 1 plus KD to the power n. This is sign symbol caret. This indicates the power n. So this is the formula by which you can compute the present value of the bond. Actually, why you calculate the value of the bond? इसको करने की क्या जरूरत है? Suppose you are going to purchase a bond, तो उसका वर्थ क्या होगा आज का दिन में? You want to know. और तुम्हारा पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो व्हाट इज द वैल्यू टुडे? ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक डिसीजन, शुड आई सेल इट और कीप इट. इफ द मार्केट प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड एंड द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड इज सच दैट मार्केट प्राइस इज हायर देन द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड, देन इट इज बेटर टू सेल. अगर उल्टा होता है, सपोज कि मार्केट वैल्यू लेस है बट योर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज मोर, देन यू शुड कीप इट. तो इसके लिए बॉन्ड का वैल्यू जानना, डिटरमिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल. तो दिस इज द बेसिक्स how we'll compute the value of bond by intrinsic value method. For better understanding,
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. दिस इज फास्ट एग्जाम्पल. इफ ए 3-year मैच्योरिटी बॉन्ड पेज ₹50 एज इंटरेस्ट पर एनम, हर साल 50 रुपया करके इंटरेस्ट मिलता है. 3-year मैच्योरिटी, दैट मीन्स आफ्टर 3 years इट विल मैच्योर. एंड ₹1000 इज द मैच्योरिटी वैल्यू. जब मैच्योर कर जाएगा देन यू विल रिसीव प्रिंसिपल अमाउंट ₹1000. देन फाइंड इट्स वैल्यू. इट मीन्स बॉन्ड्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशू. जब इशू कर रहे हैं देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. एंड सपोज द डिस्काउंट रेट और मार्केट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न is 4%. Now how will compute it? This is the answer. Here it is written solution, but it is written inside this. Okay. So BD is equal to 3 साल का इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है फर्स्ट ईयर 50. And what is the present value of it? Present value 1 plus R is a 4% discount rate. 1 plus 0.04 to the power 1 plus at the end of second year you are receiving 50 rupees. तो आज का दिन में वैल्यू क्या है? 50 divided by 1 plus 0.04 to the power 2. Third year is the maturity year. At the time of maturity of the bond, for that year you will receive the interest, साथ principal amount भी मिल जाएगा. That is the maturity value also you will receive. So total amount you will receive after third year 50 plus 1000. 50 is the interest, उस साल का इंटरेस्ट, और दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट. तो आज का दिन में उसका वैल्यू क्या है? तो दिस इज द अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर 3 years डिवाइडेड बाय 1 plus 0.04 to the power 3. दिस इज पावर. एंड इफ यू compute, आई एम नॉट गोइंग टू शो द कंप्यूटेशन, जस्ट वैल्यू आई हैव रिटन हियर. तो यू विल सी. तो आज का दिन में उस बॉन्ड का वैल्यू इज दिस. नाउ 1027.80. नाउ किसी ने इस बॉन्ड को तुमको ऑफर कर रहा है से 1000 rupees 10, then it is better to purchase it because the worth of the bond is more than the market price of the bond. और अगर तुम्हारा पास इस टाइप का बॉन्ड है और मार्केट में प्राइस जा रहा है इससे 1050, तो तुम जानते हो कि योर बॉन्ड वर्थ इज ₹1027.80 at present and market price is more, it is better to sell it. So for that purpose you should know how to compute the value of the bond. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज इज बीइंग यूज्ड. टाइम वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर 1 year ₹50 रिसीव करना इक्विवेलेंट टू आज का दिन में उसका वैल्यू 48.10. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. आफ्टर सेकेंड ईयर 50 रुपीज रिसीव करने का मतलब इक्विवेलेंट टू आज का दिन में उसका वैल्यू दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट दिस अमाउंट टूडे एट द रेट ऑफ interest 4%, then after 2 years you will receive 50 rupees. In the reverse way you can say 2 साल का बाद में अगर 50 रुपया रिसीव कर रहे हो, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 4% जा रहा है, देन आज का दिन में उसका वर्थ और वैल्यू विल बी दिस. एंड दिस इज एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी. थर्ड ईयर, दैट मीन्स आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड यू आर रिसीविंग 1050. तो आज का दिन में क्या वर्थ है? दिस. तो उसको सम टोटल करोगे तो आज का दिन में वो बॉन्ड जो जितना भी तुमको रिटर्न देगा उसका वैल्यू हो जाएगा दिस इज द वर्थ ऑफ द बॉन्ड. इसके अलावा देयर आर अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स आल्सो, जीरो कूपन बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज आवर फोकस फॉर डिस्कशन इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स फॉर फ्यू क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. आई विल डिस्कस ओनली फ्यू क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, yield to maturity, what is this? You should know. What is YTM or yield to maturity? It is a rate of return that a bondholder expects when purchasing a bond at its current market price and holding it till maturity. उसी को हम लोग YTM बोलते हैं. That means ये बॉन्ड जब तुम खरीदते हो तो अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो तुमको बॉन्ड क्या रिटर्न देगा? हाउ मच यू विल गेट रिटर्न? यहाँ पर रिटर्न वॉज गिवन, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ये सब दिया हुआ था. 4% रेट पर हम लोग जरूरत है, यहाँ वो नहीं. यहाँ बोल रहे हैं कि तुम एक बॉन्ड खरीद रहे हो जिसका ईयर आफ्टर ईयर हाउ मच विल रिसीव नोन है, दैट इज इंटरेस्ट नोन है, क्या प्राइस में मार्केट से खरीद रहे हैं वो भी नोन है. तो अल्टीमेटली हाउ मच यू विल गेट रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड, दैट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी. You can
say it in different way, YTM is simply the bond's internal rate of return. You can say, we know the definition of internal rate of return. तो YTM और कुछ नहीं, वही है IRR of the bond. और बीच में अगर वो कॉल हो जाता है, then it will be mentioned as yield to call, not yield to maturity, yield to call. अगर बीच means before maturity अगर वो कॉल किया जाता है तो it will be yield to call. Example, another. A bond with a par value of rupees 100 and coupon rate 13%, paid semi-annually, means half yearly, is callable at the end of 3 years with a 10% premium. 3 साल का बाद वो कॉल कर सकता है. That is the condition of the bond. The bond matures in 6 years. 6 साल का बाद में वो मैच्योर कर जाएगा. And its current market price is rupees 107. उसी बॉन्ड मार्केट में 107 रुपीज में बेचा जा रहा है. Based on this information, calculate the yield to call, not yield to maturity, yield to call, as it is being, it may be called after 3 years. See how it will be calculated. देखो, तो general expression of YTC, yield to call, yield to mean calls means at what rate you will earn from the bond if you call this bond. तो इस एक्सप्रेशन से निकल जाएगा. हाउ इट इज, दिस इज द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, दिस इज द इंटरेस्ट रेट, दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, 13% interest rate. Interest rate is given 13%. Par value is 100. That means how much interest you will receive? 13 रुपया पर एनम. लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो 6 महीने में हाउ मच इंटरेस्ट विल रिसीव? 6.5, हाफ ऑफ 13 रुपया. दिस इज, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, इसलिए इस तरह से हर हाफ महीना में यू हैव टू कैलकुलेट इट. Interest rate 1 plus R by 2. R is the interest rate for per annum divided by 2, as it is half yearly compounding, to the power 1. In this way, after second month, if you are receiving 6.50, then how will calculate the present value? 6.50 divided by 1 plus R by 2 to the power square or 2. In this way, this is 6, because remaining 3 साल है इसमें. yield to call is 3 years. 3 साल में जो कॉल हो रहा है उसी समय में उसका वैल्यू क्या है. यू आर कैलकुलेटिंग जब वो बॉन्ड कॉल कर रहे हो, तो आफ्टर 3 साल में यू कैन कॉल इट, तो उस समय में उसका वैल्यू क्या रहेगा. तो 3 साल का बाद तो और 3 साल चलेगा, 6 ईयर्स में जाके मैच्योर करेगा, तब तुमको मूल प्रिंसिपल अमाउंट और उस साल का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो यह कैलकुलेशन कब से करना है? ये 3 साल में जो आपका जब कॉल हो रहा है उसका बाद से लेकर मैच्योरिटी टाइम. तो टोटल 3 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 6 बार, क्योंकि साल में 2 बार मिलता है हाफ ईयरली. तो इसलिए इन दिस वे 6 ईयर तक जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6.50 इस 6 ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है. 6 ईयर नहीं, 6 टर्म यू कैन से, लास्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है. एंड उसी को भी प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए 1 प्लस R by 2 टू द पावर 6 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा? पार वैल्यू इज 100 और 10% प्रीमियम. That means how much you will receive after 6th year? 100 plus 10, that is 110 divided by 1 plus R by 2 to the power 6. 6 is equal to 6th installment, 6th interval हो रहा है ना, इसलिए तो इसी को फिर प्रेजेंट वैल्यू बोला. If you add all this, the concept is it will be equal to market value of the bond. तो मेरे को क्या निकलना है? At what rate? We don't know the rate. That rate is a return from the bond. अगर इस रेट को मालूम हो जाता है तो then it will be easy to take decision. सपोज करो कि इस बॉन्ड का रिटर्न रेट हो रहा है से 11% और मार्केट का इंटरेस्ट रेट जा रहा है 10%, तो इसका रिटर्न ज्यादा है, then you should purchase it. अगर उल्टा होता है सर कि मार्केट का रेट ज्यादा है, मार्केट का रेट कम हो रहा है, इसका रेट ज्यादा है, then you should hold it.
तो इसी तरह से यू कैन टेक डिसीजन। उसी को मैं शॉर्ट में लिखा है सिग्मा देके, टी इज इक्वल टू 1 to 6, क्योंकि 6 इंटरवल है ना, 1 2 3 4 5 6, और इंटरेस्ट अमाउंट इज सेम बॉन्ड का, हर सेल का। ये हाफ ईयरली हो रहा है इसलिए 6.50 r/2 टू द पावर टी, टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। और 6th ईयर का जो यू आर गेटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट 110, तो उसी को भी प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, जो यहाँ पर दिखाया गया वही हम यहाँ लिखे। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ये आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्चुअली ये हिट एंड ट्रायल मेथड में इसको निकाला जाता है। जो ट्रायल बाय ट्रायल देखोगे आर का क्या वैल्यू में ये दोनों बराबर हो जाता है, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। सपोज करो कि 5% से स्टार्ट किए तो देख रहे हो कि 5% करते तो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है। ये 107 है तो वो आ रहा है से 115, तो उसका मतलब है कि जितना 115 आ रहा है उसका और घटाना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। रेट को बढ़ाओगे तो फिर घटेगा। तो इस तरह से कितना बार ट्रायल करोगे कि बराबर हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू कैलकुलेट मैनुअली। कैलकुलेटर से भी करोगे तो बहुत समय लगेगा। हमको शुरू कहाँ से करना है? अगर मान लो रिजल्ट है 9%, हम तो 2% से शुरू ट्रायल शुरू किए तो 2 के बाद लोगे 3 के बाद 4 के बाद कितना कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड निकालें। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। बाय दिस शॉर्टकट मेथड तुमको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिस्काउंट करोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। सी जो कैसे कैलकुलेट किया। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। दिस आई इंटरेस्ट जो ईयर आफ्टर इंटरेस्ट मिल रहा है वो, प्लस एम बी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू, माइनस सी इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस से तुम खरीदोगे, डिवाइडेड बाई एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ होल्डिंग, और डिवाइडेड बाई इट इज द इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी वैल्यू प्लस कॉस्ट डिवाइडेड बाई 2। ये करते तो यू विल रफली गेट द रिटर्न इंटरेस्ट रेट। ओके, इससे पता चल जाएगा तो कैसे हो रहा है। देखो इसमें ये इंटरेस्ट है प्लस ये भी रिटर्न है, क्योंकि 110 रुपया लास्ट में आ रहा है, खर्चा की 107, तो 3 रुपया आया, डिवाइडेड बाई 6 साल में आया ये, तो 1 साल का रिटर्न इतना आ रहा है। 1 साल का इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा एवरेज मैच्योरिटी पर है 110, शुरू का 107, तो डिवाइड कर दोगे तो दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.45%। लेकिन हमको आर निकालना है, ये तो हाफ ईयरली हो गया ना, तो एनुअली कितना हो जाएगा? तो ये r/2 एनुअली का डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस इज हाफ ईयरली, तो आर हो जा रहा है 12.9%, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 13%। इसका मतलब ये रिजल्ट जो है 13% का आसपास में आएगा। ये एक्यूरेट नहीं है, ये रफ एस्टिमेशन है। तो गेट द एक्चुअल और एक्यूरेटली द रिजल्ट, तो तुमको IRR मेथड जो है और हिट एंड ट्रायल मेथड वो अप्लाई कर देना है। कैसे? देखो 13% रेट पर जो है, अगर 13% रेट पर द प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा था 13% का, पर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना, प्रेजेंट वैल्यू 6.50 इंटू 4.841, एक क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ये जो बार बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार नहीं करके अगर सारा डिस्काउंट रेट को ऐड कर देंगे, वो मैं देखा मैं नीचे किया हुआ है, तो एक ही मल्टीप्लीकेशन में यू कैन गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब प्लस ये अमाउंट अलग है इसलिए इसको अलग से करना पड़ेगा। 110 ये 6 पीरियड ऑफ इंटरवल में मिल रहा था, तो 6 पीरियड का जो डिस्काउंट रेट है, तो ये जो है 1 प्लस 13/2, 13 इज अ परसेंटेज रेट लिया हुआ है, टू द पावर 6, तो वो डिस्काउंट रेट हो जाएगा 0.705। ये करते तो यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू 109.51। लेकिन कितना होना चाहिए था? 107। इसका मतलब तुम्हारा आंसर नहीं आया। अगर ये 107 आता देन यू कैन से, सॉरी ये ऊपर में देख रहा था 106.86, तो 106.86, तो 107 तो आया नहीं। अगर 107 हो जाता है एक्यूरेटली तो तुम्हारा आंसर जो है, योर आंसर वुड बी 13%। तो यहां देख रहे कि थोड़ा सा और वैल्यू को ज्यादा करना होगा। वैल्यू ज्यादा करने के लिए डिस्काउंट रेट क्या करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 13% से नीचे नेक्स्ट इंटीजर में 12% मैं ले रहा हूँ। इफ यू चेक इन द सिमिलर वे विथ 12%, तो क्या आ जाएगा? 6.50 इंटू 4. दिस इज द क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 12%। 13% का था ये, 12% का हो जाएगा ये। देखो कि टेबल पर मैं दिखा रहा हूँ, ये टेबल है,
डिस्काउंट रेट, ये 6% का 1 साल का डिस्काउंट रेट, दिस 2 साल का, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसे 3, 4, 5, 6। तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर मतलब यू हैव टू ऐड ऑल दिस डिस्काउंट फैक्टर, ये 4.917 और 6% का लिए, और लास्ट 6th ईयर का डिस्काउंट रेट 0.70 भाई याद रखोगे। 6th ईयर का दिस और क्यूमुलेटिव सबको अगर टोटल कर देते हैं, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करके, देन यू विल बी 4.917, यू चेक इट। तो 12% का दिखा रहे हैं, देखो 4.917 दिस द क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, और ये जो है तुम्हारा 6th इंस्टॉलमेंट का बाद जो है 0.705, और एक बार दिखा देते हैं 0.705। तो 6th ईयर का फिगर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल कम टू द प्रेजेंट वैल्यू 6% का केस में। इसी तरह से 6.5 का भी किया हुआ है, उसका भी टेबल से लिए हैं वैल्यू, टेबल ये क्यूमुलेटिव 4.841, क्यूमुलेटिव का 4.841 और 6th ईयर का 0.685, तो ये टोटल वैल्यू होगी। तो ये भी तुम्हारा 107 नहीं है, ये भी 107 नहीं है, 107 से ज़्यादा हो गया, जैसे 12% कर दिए तो प्रेजेंट वैल्यू तो इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन तो बराबर चाहिए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ये डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ये 107 के बराबर होगा। उसका मतलब है कि 13 और 12 का बीच में हुआ आएगा, क्योंकि 13 लेते हैं तो 106 पॉइंट इतना हो रहा है, और 12 लेते हैं घटाते हैं तो बढ़ जाता है, तो बीच में कोई जगह जो है तुम्हारा 107 आ जाएगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो हाउ विल कैलकुलेट इट, इसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन का सहारा लेंगे, इंटरपोलेशन मेथड, इंटरपोलेट करके निकालेंगे। तो एक्चुअली ये दोनों का डिफरेंस क्या है प्रेजेंट वैल्यू का, देखो 109.51 और ये डिफरेंस इज दिस, तो इतना पीवी का चेंज होता है, इतना डिस्काउंट रेट चेंज होने के बाद होता है ये 1% पर। तो 1% अगर मैं बढ़ाते हैं ये घटाते हैं तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो 1 यूनिट पीवी यूनिटरी मेथड में किया गया, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिवाइडेड बाई दिस, हमको चेंज कितना चाहिए दोनों साइड से मैं चेक कर सकता हूँ। अगर 13% से चेक करें तो 13% का कौन सा था, 13% ये, तो इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो 107 माइनस दिस दैट इज 0.14, इतना बढ़ाना पड़ेगा। इतना बढ़ाने के लिए पीवी को बढ़ाने का मतलब है कि वो डिस्काउंट रेट को थोड़ा घटाना है। तो 0.14 के लिए प्रोपोर्शनेटली कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.65 इंटू दिस, तो इतना जो है चेंज करना पड़ेगा। चेंज मीन्स 13% से ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं घटाने से वैल्यू बढ़ जाता है, तो हमको तो वैल्यू बढ़ाना चाहिए, इसलिए पीवी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीवी ये था, इससे थोड़ा 0.14 बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए डिस्काउंट रेट को घटाना पड़ेगा। तो 13% से मैंने ये घटा दिया, तो इसलिए फाइनली ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द YTC, यील्ड टू कॉल, यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अनदर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो कि ए बॉन्ड विथ 13% कूपन रेट पेइंग इंटरेस्ट सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली, इज इशूड at ₹100 and currently trades at a market price of ₹112. If it matures in 5 years, calculate its yield to maturity. Yield to maturity निकालना है, मतलब उस बॉन्ड उनको कितना रिटर्न दे रहा है, वही IRR। तो फॉर्मूला मैं पहले बता दिया था। अच्छा, हाफ ईयर लिया, 13% कूपन रेट, कूपन मीन्स इंटरेस्ट रेट, और इशू वैल्यू कितना है 100 प्राइस से, इशू एट ₹100, तो इंटरेस्ट पर एनम हो जाएगा 13 रुपया, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड बाई 2, 6.5 रुपये करके। और ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जब हाफ ईयरली होता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वार्टरली होता है तो क्या, मंथली, सब में दिखाया हुआ। अगर इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज यू चेक दैट वीडियो। तो इसी तरह से तो 5 साल का है ना, 5 ईयर्स मैच्योरिटी है, तो 5 दूना 10, 10 इंटरवल हो जाएगा। तो मैं एक साथ में शॉर्ट में लिख दिया 6.50, ये फॉर्मूला 1 + r/2 डिवाइड बाई 2, इसलिए हाफ ईयरली। अगर क्वार्टरली होता तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टरली तो 3 मंथ्स इंटरवल, मंथली होता तो 12 से डिवाइड करते हैं। इफ आर इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम, और ये पावर है, करेंट मीन्स फॉर टी, प्लस लास्ट इंटरवल का जो दैट मीन्स आफ्टर 5th ईयर 5 साल का बॉन्ड, सिमिलरली पेइंग करेंटली 5 ईयर्स बॉन्ड, तो 5 साल का लास्ट में जो मिलेगा इंटरेस्ट वो तो यहाँ ले लिए हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी का वो 100, या
कोई प्रीमियम भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है। अगर बोलता कि 10% प्रीमियम पर मिलेगा तो 110 हो जाता, अगर डिस्काउंट पर है तो कम मिलता। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर आ गया। डिवाइडेड बाई, इसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है तो 10th इंटरवल है, इसलिए 1 प्लस r/2 टू द पावर 10। इसी तरह से मैं ये फॉर्मूला को दिखा दिए हैं, तो इट शुड बी सेम बोथ साइड। तो आर का वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों सेम हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट मेथड पहले अप्लाई कर लिए, क्योंकि पहले भी बोला कि आप आर्बिट्ररी में कहाँ से शुरू करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कंप्यूटर से करोगे तो अलग बात है, लेकिन मैनुअली करते हैं तो कहाँ से, मैं 5% से शुरू करूँ, 6% से करूँ, तो इट इज़ वेरी, इसलिए इट इज़ बेटर इन एग्जाम ऑल्सो एक शॉर्टकट मेथड का थ्रू एक नियरर रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेना है। तो नियरर या आर का वैल्यू नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा ये निकाल लिया, उसका बाद मैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तब जाके ट्रायल एंड एरर मेथड में या हिट एंड ट्रायल और IRR मेथड जो भी बोलोगे सेम, उससे मैं एक्यूरेट YTM और रिटर्न निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही है, I प्लस पहले जो बताया था वही MB माइनस सी डिवाइडेड बाई N, MB प्लस सी एवरेज। ये टोटल रिटर्न है पर एनम का, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट है। तो ये पर एनम रिटर्न क्या हो जाएगा, 6.50 इज द पर एनम नहीं, पर पीरियड यहाँ पर 6.50 प्लस ये 100 माइनस 112, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये लास्ट में जो मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 112 तुमको खर्चा है खरीदने का लिए, और ये है तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलेगा। तो कम मिल रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 इंटरवल में इतना रिटर्न, इसलिए पर इंटरवल का रिटर्न इतना आ रहा है, और पर इंटरवल में एवरेज इन्वेस्टमेंट 100 प्लस 112 डिवाइडेड बाई 2 106, एंड दिस इज द रिटर्न। एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाई 100 देन इट विल बी इन परसेंटेज 5%। तो ये रफ एस्टिमेशन किया गया 5%। तो 5% हो रहा है तुम्हारा हाफ ईयरली करके, तो एनुअली कितना हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई इट बाई 2 दैट मीन्स 10%। योर आंसर विल बी 10% पर एनम अप्रोक्सीमेट। नाउ टू गेट द करेक्ट आंसर तो हमको इंटरपोलेशन यूज करना है, तो r/2 इज 10%। तो इंटरपोलेशन कैसे यूज करना है, नाउ 10% से अगर करते हैं तो व्हाट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। 10% से देखते हैं, अगर वो एक्यूरेट हो जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू अगर तुम्हारा यही 112 आ जाएगा तो दैट वुड बी द आंसर। अगर नहीं होता है तो यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो 6.50 इंटू 7 इंटू 722, this is the cumulative discounting factor for 10 intervals at the rate of how much, at the rate of r/2, that means 5% रेट पर ये आ जाएगा। मैं उसको दिखाते हैं, टेबल ये नीचे किया हुआ है। 5% पर जो है क्यूमुलेटिव डिस्काउंट 7.7217, और ये 10th लास्ट पीरियड का ये डिस्काउंट रेट 0.61 याद रखोगे, 0.71 7.72, तो 7.722 लास्ट मिल रहा है 100, इसको प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है इफ यू अप्लाई r इज इक्वल टू 10%, और r/2 हो जाएगा 5%। सिमिलरली तो ये क्या है, 112 तो हुआ नहीं है, 112 लाने के लिए और थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा, तो उससे कम हो रहा है। तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डिक्रीज द डिस्काउंट रेट। तो इंटीजर वैल्यू में 10 का बाद नहीं होता है, सॉरी घटाना पड़ेगा, घटाने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगा। तो 10 का बाद ये 9 ले रहा है, 9%। 9% में जाओगे तो दिस इज द क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 9% मीन 4.5% पर इंटरवल, देखो यहाँ, और 4.5% इंटरवल में, तो क्यूमुलेटिव 7.9127, और ये 10th पीरियड का 0.64, तो भी दिखा देते हैं। तो ये हुआ, तो 9% का ये है क्यूमुलेटिव 6.39, और ये 10th पीरियड का 7.93। तो करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है। तो ये 12 से एक्सिट कर गया, वो तो था 112 होना चाहिए, इससे ऊपर चला गया। तो बीच में जो है कोई भी जगह तुम्हारा 112 हो जाएगा, ये और इसका बीच में कोई भी जगह। तो यू हैव टू यूज द इंटरपोलेशन मेथड। तो अगर मैंने आंसर को यहाँ प्लस करना चाहते हो, वहाँ पर माइनस किए थे, प्लस का मतलब नीचे से करेंगे तो प्लस जाएगा, 9% इससे प्लस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 115 112, तो दोनों का डिफरेंस 3.82 इतना घटाना पड़ेगा, तब जाके 112 हो जाएगा। तो यहाँ वही किए 4.23 PV चेंजेस यूनिटरी मेथड फॉर डिस्काउंट ऑफ 1%, ये कैसे दिखा दिया 4.23, दोनों को कैलकुलेट करोगे दिस माइनस दिस, तो 4.23 इतना PV का चेंज हुआ, 1% चेंज डिस्काउंट रेट का लिए। तो एक PV चेंज हो जाने के लिए क्या है 1/4.23 इतना परसेंटेज, हमको चाहिए 3.82 चेंज करना, मतलब नीचे से अगर ऐड करना है, बढ़ाना है कि यहाँ से, तो कितना बढ़ना है इससे, तो वैल्यू 112 इससे माइनस करना 3.82, ये चेंज करने के लिए। तो दैट मीन्स योर आंसर विल बी 9% प्लस दिस परसेंट, ये तुम्हारा YTM आ जाएगा। तो दिस विल बी द
YTM for your problem. The present value of future cash flows will be equal to the current market price. Hence the YTM will be 9.903. Okay, in this way you can apply the time value of money to determine the value of the bond YTM, yield to maturity, yield to call also. Here I have shown you, you can calculate the year-wise discount factor by calculator, or you can do through computer also. So this is through calculator. How? After 1 year, this is the discount rate. How this value has come? This is after 1 year. That's a 1 divided by 1 plus 0.045. If you calculate this, तो ये value आ जाएगा. After 2 years, तो 1 divided by 1 plus, that means 1.045 to the power square, 2 हो जाएगा पावर. इस तरह से इस वैल्यू लाने के लिए क्या लिखोगे, कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.045 टू द पावर 10. तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा और इस सारे को जोड़ देंगे, सारे को जोड़ा जाएगा तो दिस इज द क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर. जब ये मल्टीप्लाई करते हैं उस अमाउंट से तब जाके प्रेजेंट वैल्यू आता है. अगर ये ईयर आफ्टर ईयर वैल्यू सेम रहता है तो बार बार मल्टीप्लाई ना करके इट इज बेटर टू ऐड ऑल द डिस्काउंटिंग फैक्टर और एक ही बार में मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसलिए क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज होता है. और जबकि 10th ईयर का जब करते हैं मेच्योरिटी वैल्यू का तो उस समय में हमको इस फैक्टर चाहिए, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं. तो सिमिलरली 5% का जो कैलकुलेट करोगे इस तरह से हो जाएगा ये. तो ये तो मैनुअली किया. अगर जैसा ये हम बताते हैं जब 2 साल का बाद कैसे आएगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर स्क्वायर और 2. तो देखोगे ये वैल्यू आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू जो कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं वो बहुत आसान है, विल बी वेरी इजी. तो भी ले सकता हूँ, ये मैं दिखाते हैं. तो कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर से किया हुआ है. तो कंप्यूटर से कैसे किए, देखो ये जो है फॉर्मूला लगा दिए. फॉर्मूला कैसे लगाए, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये है, ये तो कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं डॉलर साइन यूज़ किया. A3, इसका पोजीशन A3 है. तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A3, तो ये वैल्यू आ गया. और इसमें क्या करते हैं सिर्फ 20 डिवाइडेड बाई, फिर वही यही अमाउंट को तो और एक बार जाता है. स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाई और एक बार, तो इसलिए B3 लिए हैं डिवाइडेड बाई उससे 1 प्लस 1 3. इसी तरह से ये हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा C3, इसी वैल्यू को फिर और एक बार, हाँ क्यूब करने का मतलब है कि ये तो है और एक बार डिवाइड कर देते हैं. इसी तरह से इंटर एक कमांड में आ जाता है इसी तरह से. और इसको क्यूमुलेशन कर देते हैं, सम टोटल किए ये सम. यही वैल्यू को मैं कॉपी करके वहाँ लगाऊँ. तो ये धीरे धीरे चेक करोगे, लॉजिक में बता दिया. इसी को भी देखो यहाँ करते हैं तो 1 डिवाइड, यहाँ A4, ये A4 इसी तरह से चलेगा. और ये लास्ट में सम टोटल किए, सम टोटल किए इक्वल टू सम B4 टू Q4, मतलब ये जो है यहाँ से B4 यही है, यहाँ से K4, यहाँ तक टोटल करने से यू विल गेट दिस. इज ए क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एक्सेल शीट से इस तरह से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. इसमें बहुत कोई 1 मिनट में ये आ जाएगा. तो ये था तुम्हारा हाउ कंप्यूटर कैन हेल्प यू टू गेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यूज एंड क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग वैल्यू. नेक्स्ट एक शेयर वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ दिखाया है. वो जैसा बॉन्ड वैल्यूएशन था, ये शेयर का वैल्यू कैसे करोगे. तो ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन है. ये पूरा जो वीडियो है इसका मेन पर्पस है टू शो हाउ यू कैन यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मेथड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर. ऐसे तो बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है, तुम्हारा प्रोजेक्ट में है बहुत तरह का, बॉन्ड वैल्यूएशन में, इसका ऑप्शन वैल्यूएशन में बहुत तरह का. लेकिन यहाँ मैंने बॉन्ड एंड शेयर वैल्यूएशन का दिखाया. तो शेयर का मैं एक एग्जांपल यहाँ लिए. हाउ ABC लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड्स ऑफ ₹4 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ₹7 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इस तरह से दिया हुआ है. ₹7 ₹11 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड द dividends are anticipated to grow at a constant rate of 4%, given a required rate of return 14%. The discount rate is 14%, market rate is 14%. Or required rate of return you can say this. Determine the present value of this year. उसी तरह से दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ईयर. दिस इज डिविडेंड फर्स्ट ईयर का है, दिस इज आफ्टर सेकेंड ईयर, ये फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर एवर कंपाउंडिंग वाले जो यहाँ पर डिविडेंड्स आर एंटिव टू ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट फॉर एवर, तो उसी के लिए इसको यूज किया गया. तो D3 इंटू 1 प्लस G फॉर एवर डिवाइडेड बाई K माइनस G. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग फॉर एवर. तो आफ्टर थर्ड ईयर, यहाँ पर मैं लिख दिया, आफ्टर थर्ड ईयर यू विल गेट दिस वैल्यू. D3 थर्ड ईयर का जो डिविडेंड है वो ग्रो करते चला जाएगा फॉर इन्फिनिटी एट द रेट ऑफ G%, दैट्स 1 प्लस G. और फॉर एवर है, इफ यू डिवाइड बाई K माइनस G, K इज द आस्किंग रेट, डिस्काउंट रेट, दिस द ग्रोथ रेट.
डिविडेंड ग्रोथ रेट, ये हमेशा जो है के ग्रेटर देन जी, तब जो है ये वैल्यू आ जाएगा, जो फॉर एवर का वैल्यू है तो इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो हमको जो है क्या करना है, D1 वैल्यू का इसी प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, D2 को भी प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, और ये जो है D3 इस समय में जो मिलेगा और जो फॉर एवर का वैल्यू है दोनों मिला के इसी को 0 पर लाना है। इसलिए देखो फॉर्मूला मैंने उसी तरह से यूज़ किया, D3 इंटू 1 प्लस जी इंटू के माइनस जी, ये टोटल जो वैल्यू है तो इसी को फिर प्रेजेंट वैल्यू में ले जाना है। इसलिए आफ्टर थर्ड ईयर बोला है ना, तो थर्ड ईयर का बाद ये वैल्यू मिल रहा है, तो इसलिए 1 प्लस के टू द पावर 3, जो थर्ड ईयर का डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू मिला है जिस तरह से, वो भी उसी तरह से ही ये जो है ये होल लाइफ में जो डिविडेंड मिला है उसका वैल्यू है, तो आफ्टर थर्ड ईयर उसको मैंने फिर प्रेजेंट वैल्यू मिला है, तब जाके तुमको टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो डिविडेंड फर्स्ट ईयर का 4 रुपया है, सेकेंड ईयर का 7, थर्ड ईयर का 11 इस तरह से दिया हुआ है, और डिस्काउंट रेट जो है 0.14 यहाँ एनुअल है, इसलिए डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो 1 प्लस 0.14 टू द पावर 1 आफ्टर 1 ईयर है, 7 मीन्स 1 प्लस 0.14 टू द पावर 2, सेकेंड ईयर के बाद 7 रुपया मिला, उसका आज का दिन में वैल्यू क्या इस तरह से, थर्ड ईयर के बाद में डिविडेंड मिला, ये इंटरेस्ट नहीं, शेयर में इंटरेस्ट नहीं होता डिविडेंड, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.14 टू द पावर 3, और ये की भी है, इसका कारण है जो थर्ड ईयर का बाद का जो इंटायर लाइफ में जो उसको डिविडेंड मिला उसका वैल्यू ये हो गया, तो 11 इंटू जो फॉर्मूला यही है 1 प्लस जी, जो ग्रोथ रेट है 4% करके बढ़ते चला जा रहा है, जो बोला हुआ है 4% करके ग्रो करेगा 4% करके, और उसका थर्ड ईयर का पोजीशन में उसका टोटल वैल्यू कितना अर्निंग होगा, दैट इज के माइनस जी, तो ये जो टोटल वैल्यू आ रहा है इसी को फिर प्रेजेंट वैल्यू में लाएगा, तो इसको मैं टोटल करते हैं, तो इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, आज का दिन में इस शेयर का वैल्यू हो जाएगा 93.54, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन टेक डिसीजन, शुड यू सेल द शेयर और यू विल परचेज दिस शेयर। अगर ये वर्थ ऑफ द शेयर जो देख रहे हो ये अगर ज़्यादा होता है मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है शेयर का सेलिंग का, तो देन यू शुड परचेज इट। अगर उल्टा होता है, जो तुम्हारा वैल्यू कम है और मार्केट का वैल्यू ज़्यादा है, तो यू शुड सेल इट, तो अगर तुम्हारे पास शेयर है तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स। ओके, थैंक यू।